بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، خوش آمدید آپ کو ایک اور ہارر اور رومانٹک سٹوری میں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے التماس ہے کہ چینل کو آپ جلدی سے سبسکرائب کر لو۔ موسم بے حد خوشگوار تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ آمنہ بیگم کی طبیعت آج تھوڑی خراب تھی، اسی لیے ان کے لیے پانی بھرنا ممکن نہیں تھا۔ انہوں نے اپنی بیٹی سارا کو کہا کہ قریب ہی ندی سے پانی بھر کر لے آؤ۔ اپنی ماں کی حالت دیکھ کر سارا بھی کچھ کہے بغیر اٹھ آئی۔ عموماً وہ اس طرف کبھی نہیں جاتی تھی، وہ چند ہی بار اس طرف گئی تھی، وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ۔ آج وہ اکیلی جا رہی تھی اور یہ پہلی بار ہوا تھا۔ راستے میں ایک درخت کے نیچے سے گزرتے ہوئے اسے یوں محسوس ہوا کہ درخت پر کوئی بیٹھا اسے گھور رہا ہے۔ اسے صاف طور پر کسی کی نظروں کی تپش کا احساس ہوا تھا۔ خوف کی ایک لہر سارا کے پورے جسم میں دوڑ گئی۔ اس نے ڈر کے مارے پہلے تو آنکھیں بند کر لیں، پھر ڈرتے ڈرتے اوپر دیکھا، لیکن وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ ندی تک جانے اور واپس آنے تک اسے اپنی کمر پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوتی رہی۔ وہ بار بار بے ساختہ پیچھے پلٹ کر دیکھتی، لیکن وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا۔ لیکن جیسے ہی وہ آگے مڑتی، نظروں کی تپش دوبارہ سے محسوس ہونے لگتی۔ جب وہ گھر پہنچی، خوف اور پریشانی سے اس کا برا حال تھا۔ جب اس کی ماں نے اس سے پوچھا، اس نے اپنی ماں کو کچھ بھی نہ بتایا اور بات ٹال گئی۔ سارا ایک بے حد خوبصورت لڑکی تھی۔ اگر اسے کشمیر کی وادی کی شہزادی کہا جاتا تو اس میں کچھ بھی غلط بات نہ ہوتی۔ ہر طرف اس کے حسن کے چرچے تھے۔ وہ اپنی ماں، ایک بھائی اور ایک بہن کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی۔ قریب ہی اس کی چچی کا گھر تھا۔ اس کی منگنی بچپن سے ہی اس کی چچی کے بیٹے کے ساتھ طے ہو گئی تھی۔ اب بہت جلد سارا اور ارسلان کا نکاح ہونا تھا۔ وہ معمول کے مطابق گھر کے کام نمٹا رہی تھی۔ تھک ہار کر وہ صحن پر پڑی چارپائی پر آ کر بیٹھ گئی۔ اسے بیٹھے ہوئے ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اس کے ارد گرد ایک بے حد خوبصورت خوشبو پھیل گئی۔ یہ بہت ہی زیادہ خوشگن تھی۔ ایسی خوشبو اس نے اپنی پوری زندگی میں نہیں سونگھی تھی۔ وہ یہ خوشبو سونگ کر حیران رہتے۔ اس سے زیادہ خوبصورت خوشبو اس نے اپنی پوری زندگی میں نہیں سونگھی تھی۔ اچانک اس کے بال خود بخود ہوا میں اڑنے لگے۔ اسے شدید حیرت ہوئی، کیونکہ ہوا رکی ہوئی تھی، پھر اس کے بال کیسے اڑ رہے تھے؟ اچانک اس کے دل کو ایک خوف نے آ گھیرا۔ اس نے ڈر کے مارے آس پاس دیکھا، لیکن گہری خاموشی تھی۔ اس کے برعکس اسے احساس ہو رہا تھا کہ کوئی اس کے پاس موجود ہے، لیکن وہ اسے دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ اسے گڑبڑ کا شدت سے احساس ہونے لگا۔ ابھی وہ اٹھ کر بھاگتی ہی کہ اسے لگا کہ کسی نے اس کے قدم زمین پر جکڑ لیا ہو۔ اس نے چلانے کی کوشش کی، لیکن آواز اس کے گلے میں ہی پھنس گئی۔ وہ چاہ کر بھی کسی کو اپنی مدد کے لیے نہیں پکار پا رہی تھی۔ خوف اور ڈر سے اس کا برا حال تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر اپنی چھت پر پڑی، وہ پرسکون نیند میں سو رہی تھی کہ اچانک ایک بے حد خوبصورت آواز پر اس کی آنکھ کھل گئی۔ کوئی بے حد سریلی آواز میں گانا گا رہا تھا اور اپنے گانے میں اس کا نام لیے جا رہا تھا۔ وہ بے حد حیران ہوئی۔ خوف اور دہشت کے مارے اس کی اٹھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، لیکن کوئی غیر ماورائی طاقت تھی جو اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ اس کے قدم خود بخود کسی روبوٹ کی طرح بستر سے ابھرے اور آواز کی سمجھ جانے لگے۔ آہستہ آہستہ وہ اپنے گھر سے کافی دور اسی درخت کی طرف آ گئی۔ ہر طرف اندھیرا اور جامد خاموشی تھی۔ دور دور سے جانوروں کے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اوپر سے اونچے اونچے لمبے درخت اس کے خوف میں مزید اضافہ کر رہے تھے، جبکہ آواز مسلسل آئے جا رہی تھی۔ درخت کے نیچے سارا کو ایک ہیبلا دکھائی دیا۔ سارا ڈرتے ڈرتے اس کی طرف بڑھنے لگی۔ ابھی وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتی ہی کہ وہ ہوا میں ہی غائب ہو گیا۔ اپنے آس پاس سارا کو اونچے اونچے کہکاؤں کی آوازیں آنے لگی، جیسے کوئی اس پر ہنس رہا ہو، اس کا مذاق بنا رہا ہو۔ سارا نے زور سے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ دور ہی علی یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے سارا کو اٹھتے اور باہر آتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ بھی حیران تھا کہ رات کے اس پہر وہ باہر کیا لینے آئی ہے، لیکن سارا کی حالت اور اس کی دل سوز چیخ سن کر وہ بھی پریشان ہو گیا اور بھاگتا ہوا سارا کی طرف آیا۔ جیسے ہی وہ سارا کے پاس پہنچا، سارا بے ہوش ہو گئی اور شدید بخار میں تپ رہی تھی۔ سارا کو 3 دن تک شدید بخار رہا۔ سب گھر والے اس کی حالت دیکھ کر پریشان تھے کہ اسے کیا ہوتا جا رہا تھا، جبکہ اس کی چاچی بار بار اس کی شادی پر زور دے رہی تھی۔ آمنہ بیگم نے کچھ عرصے کا کہہ کر انہیں ٹال دیا۔ سارا جاؤ کچن میں یہ گوشت ابال دو۔ آمنہ بیگم نے سارا کو کچن میں جا کر گوشت ابالنے کا کہا۔ جیسے ہی گوشت لے کر وہ کچن میں پہنچی، اچانک ایک بہت ہی گندی بدبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی۔ جیسے ہی اس نے گوشت کی طرف دیکھا تو وہ گوشت نہیں بلکہ گندگی تھی۔ سارا نے زوردار چیخ ماری اور گوشت زور سے زمین پر نیچے پھینک دیا اور اونچی آواز میں چیخنے لگی اور رونے لگی۔ سب گھر والے پریشانی سے کچن میں آ گئے۔
किचन में उसकी होने वाली सास भी बैठी हुई थी। जब उन्होंने किचन में आकर देखा तो सारा गोश्त नीचे फर्श पर पड़ा हुआ था, जबकि सारा जोर जोर से पीछे की तरफ हट रही थी और रो रही थी। ये मंजर देखकर वो सब हैरान रह गए। आमना ने अपनी बेटी को सीने से लगाया और बोली, क्या हो गया बेटा? अम्मी वो देखें, वो गोश्त नहीं, वो गंदगी है। जैसे ही सारा ने ये कहकर जमीन की तरफ इशारा किया, उसकी हैरत की इंतहा ना रही, क्योंकि वो गोश्त ही था। सारा कुछ समझ नहीं पा रही थी कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। आए रोज उसके साथ कोई ना कोई ऐसा वाकया पेश आ जाता जो उसकी सोच से बाहर होता। इतना तो उसे पता था कि ये सब उस वक्त से शुरू हो रहा था जब वो उस नहर पर कपड़े धोने गई थी, लेकिन उसने किसी से इस बात का जिक्र ना किया। उसे यही लगता था कि सब उसका मजाक उड़ाएंगे। आज के जमाने में कौन इन बातों पर यकीन रखता है? ऊपर से उसकी शादी के दिन भी करीब आते जा रहे थे। अगर उसकी सास को जरा भी बिनक पड़ जाती तो वो उसका रिश्ता अपने बेटे के साथ कभी भी ना होने देती। सोचों का एक लामतनाही सिलसिला था जो कि सारा के जहन में चल रहा था, लेकिन वो बेबस थी। अगली शाम सारा सहन में बैठी कपड़े धो रही थी जब उसे यूं महसूस हुआ जैसे छत पर कोई लड़का खड़ा उसे घूर रहा हो। सारा ने इसे अपना वहम करार दिया, क्योंकि उसके घर में अभी कोई भी लड़का नहीं था और उनके घर ऐसे थे कि उनकी छतें अलग अलग थी। कोई भी यूं एक दूसरे की छत पर नहीं चढ़ सकता था। लेकिन यह एहसास शिद्दत से बढ़ता जा रहा था। सारा को अब यकीन हो गया था कि वहां पर कोई खड़ा है। जैसे ही सारा ने नजर उठा के छत की तरफ देखा, वहां पर कोई भी नहीं था। सारा झंझला कर वहां से उठ गई और जहन के दूसरे कोने में बैठकर वहां पर जाकर कपड़े धोने लगी। सारा को भी वहां पर भी बैठे थोड़ी ही देर हुई थी जब उसे अपने आसपास किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगा। वही खुशबू, वही एहसास आसपास फैलने लगा। सारा ने शिद्दत से किसी के घर आ जाने की दुआ की, क्योंकि अभी वो कोई भी नया ड्रामा सहने के काबिल नहीं थी। शायद उसकी किस्मत अच्छी थी, उसका भाई घर के अंदर दाखिल हुआ। तुम घर में अकेली क्या कर रही हो? अम्मी कहाँ है? मैंने उन्हें कितनी बार समझाया कि यूं तुम्हें अकेला छोड़ के ना जाया करे। आ गई, तुम्हारी हालत खराब है। घर आते ही भाई माँ को सुनाने लगा, जबकि सारा ने उसे खामोश करवा दिया। वो पूरा दिन सारा का पुरसकून गुजर गया। पूरे दिन में सारा के साथ कोई भी वाकया पेश ना आया। सोते सोते जब सारा की आंख खुली, उसने अपने आप को किसी अनजाने महल में पाया। वो एक बहुत ही बड़ा और खूबसूरत महल था। उसने उससे बढ़कर खूबसूरत महल अपनी सारी जिंदगी में नहीं देखा था। सारा को शदीद हैरत हुई। अभी तो वो अपने छोटे से सहन में सो रही थी, फिर वो इतने बड़े महल नुमा घर में कैसे आ गई? इसके साथ साथ खौफ की एक लहर उसके पूरे जिस्म में दौड़ गई। उसका जिस्म खौफ से कांपने लगा। क्या वो किसी और दुनिया में आ गई है, या वो किसी मखलूक के कब्जे में आ गई है जो काफी दिनों से उसे तंग कर रही थी? बहुत सारी सोचें थीं जो सारा के जहन में चल रही थी। पीछे उसके माँ बाप का क्या हाल होगा, और अगर उन्हें पता चल गया कि वो गायब हो गई है तो वो क्या सोचेंगे? सारा भी बैठी यही सोच रही थी कि अचानक उसके जहन में ख्याल आया कि मैं बाहर जाकर देखती हूँ, शायद बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए। यह सोचकर वो महल के दरवाजे की तरफ बढ़ गई। कमरे का दरवाजा बहुत बड़ा था। उसने धकेल कर खोलना चाहा, लेकिन इतनी जान उसमें नहीं थी जितना भारी वो दरवाजा था। न जाने उसके जहन में क्या आया, उसने उस दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दे दी। जैसे ही उसने दस्तक दी, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। एक बेसाख्ता मुस्कुराहट सारा के चेहरे पर आ गई। वो आहिस्ता से बाहर निकल गई। बाहर का नजारा उसकी सोच से बढ़कर रंगीन और खूबसूरत था। हर तरफ बड़े बड़े फानूस जिनकी शुआएं हर तरफ पड़ रही थी और जगमगा रही थी, माहौल को एक बेहद खूबसूरत मंजर पेश कर रही थी। वहां से निकलकर जैसे ही सारा अगले कमरे में दाखिल हुई, उसके पीछे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अब अगला कमरा खूबसूरत नहीं बल्कि एक बेहद बदसूरत कोठड़ी थी, जहां पर मुख्तलिफ कैदी जमा थे। उनकी हालत देखकर यूं लगता था जैसे वो सदियों के भूखे हों। वो निहायत ही भूखी नजरों से सारा को घूर रहे थे और उसकी तरफ आने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें देखकर सारा को अपने रोंगटे खड़े होते महसूस हुए। सारा ने पीछे मुड़कर दरवाजा खोलने की और भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा मकफल हो चुका था। वो आदमखोर जंजीरें तोड़कर बार बार उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। सारा को लगा जैसे आज उसका आखिरी दिन है। वो जिंदा नहीं बच पाएगी, ना ही वो अपने घर वालों से मिल पाएगी। अचानक ही दरवाजा खुल गया। इसके साथ ही उन आदमखोरों की जंजीरें टूट गईं। वो भूखे कुत्तों की तरह सारा के पीछे भागे। सारा तेज तेज भागती जा रही थी। यह जगह उसके लिए बिल्कुल नई थी। उसे नहीं पता था कि वो कहाँ जा रही है। उसे सिर्फ अपनी जान बचानी थी। भागते भागते न जाने वो कहाँ निकल आई। उसने आसपास देखा। आसपास गहरा जंगल था। दूर दूर से जानवरों के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी।
जबकि वो आदमखोर अभी भी उसके पीछे थे। अचानक सारा का पाँव फिसला और वो जमीन पर जा गिरी। एक आदमखोर उसकी तरफ लपका ही था, पर सारा ने पास पड़ा पत्थर उसके सर पर दे मारा। वो एक तरफ चीखता हुआ जा गिरा, जबकि सारा उठकर दोबारा भागने लगी। ये उसकी जिंदगी का सबसे भयानक और सबसे गैर मुतवक्का दिन था। उसे इस बात का भी नहीं पता था कि वो कहाँ है, और उसने शिद्दत से दुआ की कि काश ये कोई ख्वाब हो। लेकिन सूरत हाल देखकर उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हो रहा था कि ये ख्वाब है। सब कुछ उसे शिद्दत के साथ महसूस हो रहा था। गिरने से जो तकलीफ उसके घुटनों में आई थी, अगर ये ख्वाब होता तो जरूर उसकी आंख खुल जाती। उसने एकदम पलट कर देखा, पीछे कोई भी नहीं था। वो बेसाख्ता रुक गई और आसपास देखने लगी। उसने यही समझा कि वो सारे पीछे कहीं खो गए हैं। वो पास पड़ी एक बेंच पर आकर बैठ गई। अभी उसे बैठे चंद ही लम्हे हुए थे कि उसे यूं महसूस हुआ कि सामने की तरफ से कोई आ रहा है। जब उसने सामने की तरफ देखा, वहां आदमखोर एक दायरे की सूरत में उसकी तरफ बढ़ रहे थे। सारा को अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई। उसे पता चल गया कि उसकी जिंदगी के आखिरी लम्हात आ गए हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ रहे थे। सारा ने उठकर भागने से भी इनकार कर दिया। उसे पता था कि वो उनमें से निकलकर नहीं भाग पाएगी। एक आदमखोर ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि सारा की आंख खुल गई। वो जोर से चीख रही थी, जबकि उसकी बहन उसे खामोश करवा रही थी। सारा, खामोश हो जाओ, वो सिर्फ एक ख्वाब था और कुछ भी नहीं। सब ठीक है, हम तुम्हारे पास हैं। बहन की आवाज कानों में पड़ते ही सारा ने पट से दोनों आंखें खोली और आसपास देखा। वो अपने घर में अपने बिस्तर पर ही मौजूद थी। उसने बेसाख्ता अपनी बहन को गले से लगाया और जोर जोर से रोने लगी। 2 दिन में उसकी तबीयत संभल गई थी। वो वॉशरूम में मुंह धो रही थी जब उसे वॉशरूम के शीशे में किसी का अक्स दिखाई दिया। उसने एकदम पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। सारा ने इसे अपना वहम समझा और दोबारा से मुंह धोने लगी। साथ साथ वो हल्की हल्की आवाज में गुनगुना भी रही थी, इस बात से बिल्कुल अनजान कि कोई नापाक चीज उसके आसपास ही मौजूद थी। उसने चेहरे पर पानी के 2 ही छींटे मारे थे कि नल से पानी आना बंद हो गया। सारा को शदीद गुस्सा आया। उसने अपनी बहन को आवाज दी कि जल्दी से पानी ले आओ। उसकी बहन उसे पानी का कहकर चली गई। सारा की आंखों से साबुन अभी किसी हद तक साफ हो चुका था। जैसे उसने शीशे में दोबारा देखा, उसे यूं महसूस हुआ जैसे एक कद आवर आदमी उसके पीछे खड़ा हो। उसके बाल उसकी आंखों पर पड़े हुए थे, जबकि उसकी हल्की हल्की दाढ़ी दिखाई दे रही थी। एक अजीब सी वहशत अचानक चारों तरफ फैल गई। सारा ने आंखें मल के दोबारा देखा, लेकिन वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। सारा को अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई, जबकि उसके दिल की धड़कन तेजी के साथ चल रही थी। वही खुशबू थी जो आसपास फैल गई थी। सारा के जहन में एक जमाका हुआ। क्या वो गैर मावराई मखलूक यही है जो उसे काफी दिनों से तंग कर रही है, या ये उसका वहम है? कुछ ही देर में उसकी बहन उसके लिए पानी ले आई। जब उसने देखा कि नल से पानी बह रहा था, उसका दिमाग घूम गया। ये क्या बदतमीजी है सारा, मजाक की भी हद होती है। मैं अपना काम छोड़कर तुम्हारे लिए पानी लेकर आई हूँ और तुमने झूठ बोला कि नल से पानी नहीं आ रहा। सारा ने बेसाख्ता नल की तरफ देखा। वो हैरान हो गई क्योंकि नल से मतवातर पानी निकल रहा था। एकदम सारा शर्मिंदा हो गई और अपनी बहन से माफी मांग ली। बहन ने कुछ भी नहीं कहा और बाहर निकल गई, जबकि सारा के जहन में अभी तक वही कदावर आदमी घूम रहा था। आखिर वो कौन है और उससे क्या चाहता है? सारा को बहुत दिनों से अजीबो गरीब ख्वाब आ रहे थे। यूं महसूस होता था जैसे उन ख्वाबों में सारा हकीकत की बिना पर मौजूद है, और उन ख्वाबों में मिली हुई तकलीफ सारा शिद्दत के साथ महसूस करती थी। हैरत की बात यह थी कि तमाम ख्वाब सारा को अलग से ये तक याद थे कि ख्वाब में क्या क्या हुआ था, जबकि अमूमन वो अपने ख्वाब भूल जाया करती थी। कुछ दिनों बाद की बात है जब सारा की अचानक आंख खुल गई। उसने देखा वो एक बहुत बड़े कब्रिस्तान में मौजूद थी। आसपास कब्रें ही कब्रें थीं। चूंकि वो कब्रिस्तान जंगल में था, इस वजह से जानवरों के चिल्लाने की आवाजें बराबर आ रही थीं। सारा को शिद्दत के साथ खौफ महसूस होने लगा, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती जा रही थी। अचानक उसकी नजर एक जानवर पर पड़ी। वो एक अजीबो गरीब जानवर था। उससे ज्यादा अजीब जानवर सारा ने अपनी सारी जिंदगी में नहीं देखा था। खौफ की इंतहा तब हुई जब सारा ने देखा कि हर कब्र में से एक मुर्दा निकाल कर वो खा रहा था। अचानक सारा को अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई। उसने अपने आप को छुपाना चाहा, इससे पहले कि वो उस जानवर की नजरों में आए और वो उसे भी ऐसे ही चीड़ फाड़ डाले। उसने जल्दी से खुद को एक कब्र के पीछे छुपा लिया और उस जानवर को देखने लगी। उसे शदीद हैरत हुई क्योंकि वो जानवर कुछ ही कब्रों में से मुर्दों को निकाल रहा था। वो हर कब्र के पास जाता, उसे सूंघता
और जो उसे ठीक लगती उसमें से मुर्दा निकाल कर वो खा जाता, जबकि बाकी कब्रों को वो यूं ही छोड़ देता। सारा कुछ समझ नहीं पा रही थी कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। इसके साथ साथ सारा को तजस्सुस होने लगा कि वो सिर्फ कुछ कब्रों में से ही मुर्दों को क्यों निकाल रहा है। अचानक वो जानवर उसके सामने वाली कब्रों की तरफ आ गया। सारा फौरन से कब्र के पीछे हो गई और उसे देखने लगी। तब सारा को जाके पता चला कि वो सिर्फ औरतों की कब्रों में से ही निकाल कर खा रहा है। ये देखकर सारा के खौफ में मजीद इजाफा हो गया। अगर वो उसकी तरफ आ गया फिर उसका क्या होगा। सारा ने जब अपनी कब्र की तख्ती की तरफ देखा तो वो एक औरत की ही कब्र थी जिसके पीछे सारा छुपी हुई थी। अचानक वो जानवर सारा की तरफ बढ़ने लगा। सारा को अपनी सांस रुकती हुई महसूस हुई। वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ से रखने लगी, लेकिन उस जानवर की नजर सारा पर पड़ गई। अचानक उसकी आंखें शैतानी रोशनी के साथ चमकने लगी और उसने एक ही छलांग लगाई और सारा के ऊपर झपटने ही वाला था कि सारा जल्दी से साइड पर हो गई और वहां से उठकर भागने लगी। सारा पीछे देखे बगैर तेज तेज भागती जा रही थी और साथ ही ये भी सोच रही थी कि उसकी जिंदगी में यूं ही भागना ही लिखा हुआ है। अचानक ही वो उन अजीबो गरीब जानवरों के चुंगल में आ गई। हर तरफ उनका ही डेरा था। उनके गुर्राने की आवाजें हर तरफ से आ रही थी। उन्होंने उसको घेरा हुआ था। अभी वो उसे कोई नुकसान ही पहुंचाते कि सारा की आंख खुल गई। वो पूरी की पूरी पसीने में भीगी हुई थी। सारा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे ये अजीबो गरीब ख्वाब क्यों आ रहे हैं। दूसरी तरफ सारा की शादी के दिन बहुत जल्दी करीब आ रहे थे। सारा बहुत खुश भी थी और परेशान भी थी। जैसे जैसे उसकी शादी के दिन करीब आ रहे थे वैसे वैसे उसके साथ अजीबो गरीब वाकयात बढ़ते जा रहे थे। इस बात का इल्म अब सबको हो गया था, लेकिन अरसलान अब भी सारा के साथ शादी करने पर जिद कर रहा था। चची को भी कोई मसला नहीं था। उन्हें यह लगता था कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। शादी की तैयारियां जोरों शोर के साथ चल रही थी। मेहंदी पर सारा को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। यूं लग रहा था जैसे आसमान से उतरी हुई कोई हूर हो, जबकि सारा की आंखें दहशत से लाल हुई पड़ी थी। जो भी उसकी तारीफ करता वो उसे यूं घूरती जैसे वो उसे सालम निकल जाएगी। कोई भी उसके पास ज्यादा देर तक बैठ नहीं पा रहा था। जो भी उसके पास बैठता वो खौफजदा हो जाता। अचानक बात करते करते उसकी आवाज मर्दाना हो जाती। उसकी अपनी बहन डरकर उसके पास से उठकर जा चुकी थी और अम्मी से कहने लगी कि आप सारा को देखें, उसे पता नहीं क्या हो गया है। अब स्टेज पर सारा अकेली बैठी हुई थी। उसने गर्दन झुकाई हुई थी जबकि उसकी आंखें अभी भी लाल थी। आमना बेगम अपनी बेटी के पास जाकर बोली, बेटा तुम ठीक तो हो? सारा ने उसे ऐसी नजरों से घूरा जैसे वो अभी उन्हें जलाकर भस्म कर देगी। उसकी आंखों में देखकर आमना बेगम भी चंद लम्हों के लिए दहल गई। क्या आपको अरसलान के साथ निकाह कबूल है? मौलवी साहब का कहना ही था कि सारा ने पास पड़ी मेज जोर से उठाकर जमीन पर फेंकी। उसकी ये हालत देखकर सारे परेशान हो गए। अचानक उसमें इतनी ताकत कहां से आ गई कि उसने इतनी बड़ी मेज उठाकर जमीन पर फेंक दी। मैं इस लड़की का निकाह किसी के साथ नहीं होने दूंगा। अचानक सारा के गले में से एक बहुत खौफनाक मर्दाना आवाज निकली। इसके साथ ही वो जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ी। सारा की यह हालत देखकर सब परेशान रह गए। अब सबको पता चल गया था कि आखिर मसला क्या है। ये जरूर किसी आसेब का मसला था। इससे पहले तो सब लोगों ने इस बात को इतनी संजीदगी से नहीं लिया था, मगर अब मामला दूसरा था। अब ये बात सब लोगों के सामने खुल चुकी थी और ये मसला ऐसा था जो किसी आमिल की मदद के बगैर हल नहीं किया जा सकता था। अब जितना जल्द मुमकिन होता उन्हें सारा को किसी अच्छे आमिल के पास लेकर जाना था। आमना बेगम अपनी बेटी की ये हालत देखकर फूट फूट कर रोने लगी। वो समझ रही थी कि उसके साथ मसला क्या है, मगर ये मसला हल कैसे होगा ये सोच सोच कर वो पागल हो रही थी। उन्होंने एक दो आमिलों से राब्ता करना चाहा कि जितना जल्दी हो सके सारा का इलाज करवा ले, लेकिन उनकी बदकिस्मती थी कि वो आमिल जाली निकले। वो आमिल कितनी ही लड़कियों के साथ जिन निकालने के नाम पर उनकी जिंदगियां बर्बाद कर चुके थे। उन्हीं में से एक आमिल था। उसके बारे में सारा की अम्मी को उनकी दोस्त ने बताया था कि वो बहुत पहुंचा हुआ आमिल है और कितने ही लोगों को उससे शिफा हासिल हो चुकी है। वो सारा की अम्मी को उस आमिल से इलाज करवाने के लिए कायल करने लगी। वो उसकी तारीफों में जमीन आसमान की कलाबें मिला रही थी। सारा की अम्मी इन बातों से बेहद मुतासिर हो गईं और उन्होंने फैसला किया कि वो जरूर उस आमिल को घर पर बुलाएंगी। और अगले ही दिन वो अपनी उसी दोस्त के साथ उस आमिल के आस्थाने पर गए, मगर वो ये देखकर परेशान हो गईं कि वहां पर बहुत ही ज्यादा गंदगी थी। जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए थे। लोगों का बहुत ज्यादा रश था जो ये जाहिर कर रहा था कि लोगों का उस आमिल पर बहुत ज्यादा अकीदा है और ये बहुत पहुंचा हुआ है। उनकी दोस्त ने उन्हें यकीन दहानी करवाई कि यहाँ पर इनका काम हो जाएगा
और जो मसला इतने दिनों से हल नहीं हुआ वो अब हल हो जाएगा। सारा की अम्मी मुतमईन हो गई और जब वो आमिल से मिली तो एक बार फिर उनका दिल परेशान हो गया, क्योंकि वो आमिल भी अपने हुलिये से वज़ाकता से बहुत ही ज्यादा गंदा इंसान लग रहा था। और वो इंसान जो सफाई के बुनियादी असूलों से भी लाइलम था, वो उनकी कैसे मदद कर सकता था? ये तो खालिस रूहानी मामला था। मगर जब उनकी दोस्त ने बहुत ज्यादा यकीन दहानी करवाई तो वो उस पर एतमाद करने पर मजबूर हो गई। और तब वो बहुत ज्यादा हैरत ज़दा रह गई जब उस आमिल ने उनके बताने से पहले बताया कि उनकी बेटी के साथ क्या मसला है। और तब वो हैरत ज़दा रह गई जब उस आमिल ने उनके बताने से पहले बताया कि उनकी बेटी के साथ क्या मसला है। वो तो उसकी गिरविदा हो गई कि इसके पास तो गैब का इल्म है और वो तो सब कुछ जानता है। अब उन्हें पूरा यकीन हो गया कि वो आमिल उनकी बेटी की जरूर मदद करेगा और इस चीज से उसको जरूर निजात दिलाएगा। उस आमिल ने उनसे वादा किया कि शाम को उनके घर में आएगा और आज रात को वो उनके घर में खास अमल करेगा, जिसकी वजह से वो चीज वहां से चली जाएगी। वो उसकी बातों में आ गई और उसकी फीस अदा करने के बाद वहां से घर आ गई। अब वो बहुत अच्छी खासी मुतमईन थी। उन्हें लग रहा था कि उनका ये मसला हल हो जाएगा। जब वो घर आई तो सारा पर हाजिरी हुई थी और उसके मुंह से अजीब सी मर्दाना किस्म की आवाजें निकल रही थी, जिसकी वजह से सब बहुत ज्यादा खौफजदा हो रहे थे। मगर उसकी अम्मी अब मुतमईन थी कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब सारा ने उन्हें देखा तो जोर से मर्दाना आवाज में कहकाए लगाने लगी और जोर जोर से हंसने लगी। तू फ्रॉडी की बातों में आ गई है, अब वो कुछ भी नहीं कर सकता, मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, कोई मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकता और कोई मुझे सारा से दूर नहीं कर सकता। सारा की अम्मी ने इसे बहस धमकी समझा। उनका ख्याल था कि वो आमिल बहुत पहुंचा हुआ है, तभी ये चीज उसके बारे में उन्हें बदजन करने की कोशिश कर रही है। शाम होते ही वो आमिल यहाँ पहुंच गया था और उसने सारा को देखने की ख्वाहिश का इजहार किया। जब उसने सारा को देखा तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने कहा कि आज रात को उसने सारा के कमरे में बैठकर चिल्ला करना है। सारा के अब्बू इस बात पर हिचकिचाने लगे। उसके मंगेतर को भी इस बात पर एतराज था, मगर सारा की अम्मी के आगे किसी की भी ना चली। उन्होंने कहा कि वो इससे अपनी बेटी का पीछा छुड़वाना चाहती और अगर उससे बचने का कोई सबब बन रहा है तो वो लोग बीच में रोड़े ना अटकाए। मगर अरसलान को यह बात किसी भी तरह से मुनासिब नहीं लग रही थी। उसने किसी को भी कुछ नहीं कहा, मगर उसने ये फैसला कर लिया था कि वो सारा को अकेला नहीं छोड़ेगा और उसका ध्यान रखेगा, क्योंकि वो सारा को सच्चे दिल से चाहता था और वो नहीं चाहता था कि वो दोनों अलग हो या सारा को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचे। वो रात का वक्त था जब खाना खाने के बाद उस आमिल ने कहा कि उसने अब सारा के कमरे में बैठकर चिल्ला करना है और कोई भी वहां पर उसे तंग करने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि अगर अमल के दौरान उनके कमरे में कोई आएगा तो वो जिन सारा को छोड़कर आने वाले को चिमट जाएगा और फिर उसे यहाँ से भगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सब लोग ये सुनकर डर गए थे, मगर अरसलान ये सब सुनकर चौंक गया था। उसे लग रहा था कि दाल में जरूर कुछ काला है। उसे इस अमल के अजाइम खतरनाक लग रहे थे। जब वो आमिल सारा के कमरे में गया तो सारा के दोनों हाथों को रस्सियों की मदद से पीठ के साथ बांध दिया ताकि वो आमिल को या किसी को कोई नुकसान न पहुंचा सके। जब वो कमरे में गया तो सारा के मुंह से गुर्राहट नुमा आवाजें निकलने लगी। उस आमिल के होंठों पर घबराहट के आसार नमूदार होने लगे। वो इस काम को मामूली समझ रहा था, मगर इस लड़की पर वाकई किसी खतरनाक जिन का साया था और इस बात का अंदाजा आमिर को उसके करीब जाकर हो गया था। जो ही वो उसके करीब गया वो जिन उसको कहने लगा कि अगर उसने उसको गलत नीयत से छुआ भी तो तुम्हारी 7 नस्लों के साथ वो करूंगा कि उन सब के लिए इबरत बना दूंगा। वो आमिल ये बात सुनकर हंसने लगा और कहने लगा कि तुमने जो करना है कर लो। इससे पहले कि वो कोई कार्रवाई करता, किसी अनदेखी ताकत ने उसे उठाकर दूर फेंक दिया। उसका सर दीवार के साथ लगा और वो बहुत ज्यादा खौफजदा हो गया। अब सारा के मुंह से मर्दाना आवाज में कहकाए निकलने लगे और उस आमिल को कहने लगी कि अब बिगाड़ लो मेरा जो बिगाड़ना है। उसके बाद कोई अनदेखी ताकत उस आमिल को उठा उठा कर फेंकने लगी। वो आमिल बुरी तरह जख्मी हो गया। अरसलान जो खिड़की से ये सारी कार्रवाई देख रहा था, उसे उस आमिल के अजाइन का अंदाजा हो गया था, क्योंकि उसने आमिल की तमाम बातें सुन ली थी जो वो सहारा से कर रहा था। अरसलान जल्दी से कमरे में गया और उसको वहां से पकड़कर बाहर ले आया और सब घर वालों को वहां पर इकट्ठा कर लिया। सारा की अम्मी ने उन्हें देखा तो देखकर परेशान रह गई। उन्हें अपनी बेटी की फिक्र होने लगी कि अगर इतना पहुंचा हुआ आमिल भी उसका इलाज नहीं कर सकता तो कोई और उसका इलाज कैसे कर पाएगा। जब उन्होंने इस बात का इजहार किया तो अरसलान को गुस्सा आ गया और कहने लगा कि ये कोई पहुंचा हुआ आमिल नहीं है, बल्कि ये ढोंगी है और ये सारा के साथ गलत काम करने जा रहा था। इसी वजह से उस चीज ने इसकी पिटाई की है। फिर अरसलान ने उस आमिल को पुलिस के हवाले कर दिया।
जब पुलिस ने उसे पकड़ा और उसके बारे में तफ्तीश शुरू की तो उसकी बहुत सी बातें आया हो गई। वो काफी लड़कियों के साथ गलत काम कर चुका था और उनकी जिंदगी बर्बाद कर चुका था। जब सारा की अम्मी ने अपनी सहेली से इस बारे में पूछा तो वो हैरत जता रह गई। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि ये सच है। वो उस आमिल से अपनी बहू के लिए तावीज लेती थी क्योंकि उनकी बहू बहुत ही ज्यादा बदतमीज थी, मगर उन तावीजों की बदौलत वो उनके साथ बहुत अच्छी हो गई थी और उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखने लगी थी। यही वजह थी कि उनका उस आमिल पर बहुत ही ज्यादा एतकाद था। वो समझ रही थी कि ये सब कुछ इन तावीजों की बदौलत हुआ है, मगर ये काया पलट क्यों कर हुई थी वो इस बात पर अब हैरान थी। अब जो भी था सब कुछ सबके सामने आ गया था, मगर सारा का मामला जो का त्यों था। वो अभी तक उसी चीज के कब्जे में थी और अब वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गई थी। ना कुछ खाती थी ना पीती थी, हर वक्त उस पर वो चीज हाजिर रहती थी और सारा के साथ साथ घर वालों को भी बहुत तंग करती थी। जब भी ये शादी का नाम लेते या किसी आमिल का नाम लेते तो वो सारा को बहुत ज्यादा तकलीफ देने लगी थी और उसे तरह तरह की अजियतें देकर घर वालों को परेशान करने लगी थी ताकि घर वाले इस इरादे से बाज आ जाए। इस सारी सूरत हाल से अरसलान बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था और बहुत ही ज्यादा आजिज आ चुका था। वो अपने तमाम दोस्तों से, तमाम जानने वालों से किसी रूहानी आलिम के बारे में पूछता फिरता था। फिर उसके एक दोस्त ने एक आमिल के बारे में बताया। दोस्त ने यकीन दहानी करवाई थी कि वो वाकई में रूहानी आमिल है और उनमें किसी किस्म की कोई गलत बात नहीं है। अरसलान अपने दोस्त की बात पर यकीन करने के बाद जब उस आमिल से मिला तो थोड़ा सा हिचकिचा रहा था क्योंकि वो एक नौजवान शख्स था जिसके चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी थी जो उसके नूर में इजाफा कर रही थी। देखने में वो बहुत ही नेक इंसान मालूम होता था। उसके साथ बातचीत करने के बाद अरसलान को थोड़ी सी तसल्ली हो गई और फिर वो उसको अपने घर ले आया। घर में आने के बाद उस आमिल ने सारा को सामने लाने के बारे में कहा। सारा की अम्मी उसे एक चादर में लपेट कर वहां पर ले आई। वो बहुत खूनख्वार नजरों से आमिल को देख रही थी। आमिल ने उसकी अम्मी को कहा कि इसे एक जगह पर बिठा दे। फिर वो उस पर पढ़ाई करके दम करने लगा। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि सारा के मुंह से बहुत करबनाक चीखें निकलने लगी और फिर कमरे में धुआं फैलने लगा। ये धुआं इतना शदीद हो गया कि कमरे में सांस लेना मुहाल हो गया और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी देर के बाद जब ये मंजर साफ हो गया और वो धुआं दरवाजे से बाहर निकल गया तब उन लोगों ने सारा को देखा तो वो बिल्कुल नढाल अंदाज में एक तरफ पड़ी हुई थी। उसकी गर्दन एक तरफ ढलकी हुई थी। सारा को उसकी अम्मी देखकर चीखने लगी। आमिल ने कहा कि फिक्र की कोई बात नहीं है, आपकी बेटी अब ठीक है। फिर उसने एक तावीज दिया और कहा कि इसे हमेशा लड़की के गले में डाल कर रखना है। जब तक वो तावीज उसके गले में होगा वो जिन उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। सारा की अम्मी ने कहा कि आप हमें बताएंगे क्या माजरा है और ये सारा के पीछे कब से है और क्यों है। वो आमिल कुछ देर सोचने लगा, फिर कहने लगा कि वो जो भी है बहुत ताकतवर है। वो एक जिन है। एक दिन सारा जब पानी भरने के लिए गई थी तो वहां पर उस जिन ने उसे देखा था। शाम का वक्त होने वाला था। उस वक्त वो जिन एक दरख्त पर मौजूद था। जब सारा वहां से गुजरी तो वो उसे देखते ही उस पर आशिक हो गया था और जब उसकी शादी के बारे में बात शुरू हुई तो ये बात उस जिन को सख्त नापसंद आई और उसने सारा को डराना शुरू कर दिया ताकि वो इस फैसले से बाज आ जाए। और फिर जब उसके बावजूद भी वो शादी के लिए रजामंद हो गई तो वो आप सब लोगों के सामने जाहिर हो गया। इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो आप लोगों के सामने है। अब इसे मैंने आर्जी तौर पर यहाँ से भेजा है और यहाँ दोबारा वो आ सकता है। ये सुनकर सब लोग परेशान हो गए। क्या वो दोबारा यहाँ आ सकता है? आमिल ने कहा, जी बिल्कुल। मैं खुद अभी तुफले मकतब हूँ। मैं अभी ये इल्म सीख रहा हूँ। मैं इसमें माहिर नहीं हूँ और ये जो जिन है ये बहुत खतरनाक है। ये हर पल इसी ताक में रहेगा कि इसे दोबारा से सारा पर हावी होने का मौका मिले, मगर आप लोगों ने इसे दोबारा से ऐसा कोई मौका नहीं देना। एक तो इस बात का ध्यान रखना है कि इसके गले में ये ताबीज मौजूद रहे और दूसरा इसे अकेला नहीं छोड़ना। उन लोगों ने कहा कि वो इन बातों का ख्याल रखेंगे। इसके बाद उसने कहा कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मेरी मंजिल अभी बहुत दूर है। मेरे उस्ताद ने मुझे एक चिल्ले के बारे में बताया है। हो सकता है कि मेरी आपसे दोबारा मुलाकात ना हो। मैं रब से दुआ करूंगा कि आपका मसला जल्द से जल्द हल हो जाए और किसी एक ऐसे नेक इंसान से आपको मिलवा दे जो इस मसले को जड़ से खत्म कर दे। जब उन लोगों ने उससे उसके उस्ताद के बारे में पूछा तो वो कहने लगा कि वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। वो भी उन लोगों की कोई मदद अभी नहीं कर सकते क्योंकि वो भी किसी अमल में मसरूफ है और मैं नहीं जानता कि उनका ये अमल कितने दिन का है और ये भी नहीं जानता कि वो इस वक्त कहाँ पर है, वरना मैं जरूर आपका मुद्दा उन तक पहुँचाता। इसके बाद वो आमिल वहां से रुखसत हो गया। उन लोगों की आर्जी तौर पर ही सही मगर उस जिन से जान छूट गई थी।
रफ्ता रफ्ता सारा सेहतमंद होने लगी। उसकी तबीयत पहले से बेहतर होने लगी थी, मगर जो कुछ उसके साथ हो चुका था उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा खौफजदा हो गई थी और जरा जरा सी बात पर चौंक पड़ती थी। घर में जब दोबारा से उसकी शादी के बारे में बात शुरू हुई तो उसने कहा कि अभी इसी किस्से को यहीं पर खत्म कर दिया जाए। अभी इस चीज के लिए वो जहनी तौर पर तैयार नहीं है। घर वाले उसकी जहनी हालत समझते थे। किसी ने भी उसके साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश नहीं की। वो हर वक्त उस तावीज को गले में पहन कर रखती थी और एक लम्हे के लिए भी उसे खुद से जुदा नहीं करती थी। उसे अभी भी डरावने ख्वाब आते थे, मगर उनके खौफ की शिद्दत पहले से कम थी। अब वो उन ख्वाबों से इतना ज्यादा नहीं डरती थी। उस दिन शाम के वक्त वो अपने कमरे में सो रही थी जब उसकी अम्मी कमरे में आई और कहने लगी कि अभी थोड़ी देर पहले आमिर साहब यहाँ पर आए थे। उन्होंने तुम्हारे लिए ये तावीज दिया है और कहा है कि पुराने तावीज को निकाल कर उनके हवाले कर दिया जाए। सारा ये सुनकर हैरान रह गई, मगर उन्होंने तो कहा था कि ये कभी गले से भी नहीं उतरना चाहिए। अब की बार उसकी अम्मी को गुस्सा आ गया और कहने लगी कि जब मैं तुम्हें कह रही हूँ इस तावीज को उतार कर मेरे हवाले कर दो और ये तावीज पहन लो, तो तुम इस पर बहस क्यों कर रही हो। यह सुनकर सारा गड़बड़ा गई। वो अपनी अम्मी के गुस्से से बहुत डरती थी। उसने फौरन से वो तावीज अपने गले से उतारा और अपनी अम्मी के हवाले कर दिया। मगर ये क्या, अगला लम्हा हैरान कुन था। वो तावीज फिजा में जाते ही गायब हो गया और देखते देखते उसकी अम्मी की शक्ल बदलने लगी। अब उन्होंने बहुत खौफनाक सूरत इख्तियार कर ली थी। सारा को यह समझने में चंद सेकंड ही लगे कि उसके साथ ये खेल खेला गया था और ये सब कुछ उस जिन ने किया था ताकि वो उसके गले से इस तावीज को निकलवा सके और उस पर कब्जा कर सके। और यूं उस जिन ने दोबारा से सारा पर कब्जा कर लिया। तमाम लोग सहन में बैठे खुशगपियों में मसरूफ थे। जब सारा के अब्बू ने कहा कि सारा को उठा दो, इस वक्त सोना मुनासिब नहीं है, मगर अभी उनकी यह बात उनके मुंह में ही थी। उधर सारा के कमरे से जोरदार चीखों की आवाज सुनाई देने लगी। वो सब भाग कर उसके कमरे में गए, मगर अगला मंजर दहला देने वाला था। सारा छत के साथ चिपकी हुई थी और खौफ की वजह से उसकी आंखें बाहर को उगल रही थी। वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। उसको देखकर तमाम घर वाले डर गए और समझ गए कि वो जिन फिर से आ गया है और उसने सारा पर कब्जा कर लिया है। अब घर वाले बहुत ही ज्यादा परेशान थे कि क्या करें। उसने उन्हें धमकी दी थी कि हजरत अब किसी आमिल को बुलाया तो वो सारा को खत्म कर देगा और उसकी रूह को अपने साथ ले जाएगा। ये सुनकर वो सब लोग बहुत ही ज्यादा डर गए, मगर यूं हाथ पर हाथ रखकर बैठे भी नहीं रह सकते थे। सारा को पल पल मौत के मुंह में जाता नहीं देख सकते थे। अरसलान इस सूरत हाल से बहुत अजियत में आ चुका था। वो किसी को भी बताए बगैर रूहानी आमिल की तलाश में था जो उसका मसला हल कर सके। उसने उस आमिल को ढूंढने की बहुत कोशिश की जिसने सारा को तावीज दिया था, मगर उसका कोई अता पता नहीं था। कोई उसके बारे में नहीं जानता था वो कहाँ था, और उसने भी तो अपने बारे में यही बताया था कि शायद वो दोबारा कभी उनसे ना मिल सके। इसके बाद अरसलान ने एक एक करके कितने ही लोगों से राब्ता किया, मगर उसका मसला सुनते ही लोग माजरत कर लेते और कहते कि ये मसला हल करना उनके इख्तियार में नहीं है, क्योंकि वो जिन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अरसलान बहुत परेशान था कि वो अपना मसला किस से बयान करे। उस दिन अरसलान उसी जंगल में से गुजर रहा था और फिर वो सस्ताने के लिए एक दरख्त के नीचे बैठ गया। उसे किसी ने बताया था कि उस जंगल में उस तरफ एक बुजुर्ग रहते हैं। वो बहुत पहुंचे हुए हैं और वो जरूर उसकी मदद कर सकते हैं। अरसलान उनको ढूंढता फिर रहा था, मगर वो कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। फिर उसे दूर से एक शख्स अपनी जानिब आता दिखाई दिया, और जब वो उसके करीब आए तो अरसलान ने देखा कि वो एक बुजुर्ग थे जिनके चेहरे पर सफेद दाढ़ी थी और जिनका चेहरा बहुत ही ज्यादा नूरानी था। वो सीधा चलते हुए अरसलान के पास आए और उससे कहने लगे कि क्या बात है बरखुरदार, यहाँ किसका इंतजार कर रहे हो। जवाबन उन्हें अरसलान ने अपनी सारी आप बीती बताई कि उन लोगों पर क्या बीत रही है। बुजुर्ग ने तसल्ली से उसकी बात सुनी और कहा कि फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मेरे रब ने चाहा तो जरूर खैर होगी और उस बच्ची को जरूर शफा होगी और वो खबीज जिन अपने अंजाम को जरूर पहुंचेगा। अरसलान ने उन्हें कहा कि कोई मेरी मदद करने को तैयार नहीं है। मैंने कितने ही लोगों से राब्ता किया है, या तो वो जाली आमिल होते हैं या फिर वो उस जिन से ताकत से मुकाबला नहीं कर सकते और पहले ही माजरत कर लेते हैं। उन बुजुर्ग ने थोड़ी देर अपनी आंखें बंद करके कुछ पढ़ा और फिर उससे कहने लगे कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और अल्लाह ताला ने चाहा तो उस बच्ची को जरूर शफा हासिल होगी। उनकी बात पर अरसलान उन्हें हैरत से देखने लगा और फिर उनसे ये पूछने लगा कि आप ही वो बुजुर्ग हैं, वो नेक इंसान जिनके बारे में मुझे किसी ने कहा था कि आप इस जंगल में मुझसे मिलेंगे। वो बुजुर्ग कहने लगे कि हाँ, और जो शख्स तुम्हें मिला है वो मेरा मुरीद था।
और मेरा शागिर्द खास था। अभी वो इस मैदान में कच्चा है, वरना वही तुम लोगों के लिए काफी था। मगर अब मसला काफी ज्यादा पेचीदा हो गया, इसीलिए मुझे खुद चल के देखना होगा कि क्या मामला है। अरसलान उन्हें लेकर अपने घर आ गया। वो जैसे ही घर में दाखिल हुए तो उनके कदम रखते ही सारा बहुत बुरे तरीके से चीखने चिल्लाने लगी और खुद को नोचने खसोटने लगी। सारा को बड़ी मुश्किल से उन लोगों ने काबू किया और शाह साहब ने घर में आते ही सारा को फौरन चलाने को कहा और कहा कि उनके पास वक्त बहुत कम है। अगर उन्हें जरा सी भी देर हो गई तो वो खबीस जिन सारा को अपने साथ ले जाएगा। उन्होंने अरसलान को कहा कि मुझे ये जरूरी सामान अभी के अभी ला कर दो, वरना अगर देर हो गई तो तुम लोगों को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ जाएगा। अरसलान उसी वक्त वहां से भागा। बाबा जी के कहने पर सारा को उनके सामने लाकर बिठा दिया गया और उसको दोनों बाजुओं से उसकी अम्मी ने और खाला ने पकड़ा हुआ था, मगर वो किसी तरह भी उनके काबू में नहीं आ रही थी। वो बहुत बुरी तरह से चिल्ला रही थी। शाह साहब ने पानी दम करके उस पर पानी के छींटे मारे तो वो एक जोरदार अंदाज में चीखते हुए बेहोश हो गई। थोड़ी देर के बाद अरसलान वापस आ गया। शाह साहब ने अपनी तमाम मतलूबा अशिया अपने सामने रखी और उन पर पढ़ाई करने लगे। कुछ ही पल गुजरे थे जब खिड़कियां और दरवाजे जोर जोर से बजने लगे। वो सब लोग बहुत बुरी तरह से डर गए, मगर इस सबसे बेनियाज शाह साहब अपनी पढ़ाई करने में मगन थे। थोड़ी ही देर के बाद कमरे में धुआं बढ़ता गया और फिर वो एक मुजस्सिम सूरत में ढल गया। वो बहुत ही ज्यादा खौफनाक और करीब सूरत था। शाह साहब ने उसे कहा कि तुम इस लड़की को छोड़कर यहाँ से चले जाओ। तो वो जिद्दी लहजे में कहने लगा कि नहीं जाऊंगा, मैं इस लड़की को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा, इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। जब उसे शाह साहब ने दूसरी से तीसरी बार कहा, वो फिर भी नहीं माना। अब की बार शाह साहब भी जलाल में आ गए और पानी पर एकदम कर उस पर वो पानी के छींटे मारने लगे। अब वो बुरी तरह से चिल्लाने लगा। ऐसे लग रहा था कि उसे बहुत तकलीफ हो रही। अब वो शाह साहब से माफी मांगने लगा और कहने लगा कि वो उसे छोड़कर चला जाएगा, मगर शाह साहब को अब उसकी बात पर यकीन नहीं था। उन्होंने उसे एक बोतल में कैद कर लिया और फिर घर वालों को कहा कि अब आप लोगों को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अब उस जिन से आप लोगों की हमेशा के लिए जान छुड़ गई है। इसके बाद शाह साहब वहां बैठे बैठे अचानक से गायब हो गए। वो सब लोग हैरत से एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि शाह साहब कहाँ चले गए। वो लोग आज भी अक्सर यही सोचते हैं कि आखिर शाह साहब कौन थे। यकीनन वो अल्लाह की तरफ से भेजे हुए नेक बुजुर्ग थे जो उनकी मदद करने के लिए आए थे। इसके बाद सारा की शादी भी हो गई और फिर कभी भी उसे उस जिन ने तंग नहीं किया था। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन आपको आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दे और जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाकर लाते हैं। तो जाने से पहले सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को ऑल पर प्रेस कर दो, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आप तक आसानी से पहुंच सके। और व्यूअर्स आपसे इल्तमास है कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक भी किया कीजिए और कमेंट में बताया कीजिए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, पसंद आती है नहीं पसंद आती, या फिर मैं आपके लिए किस तरह के वीडियो लेकर आऊँ। तो अपनी तो हमें याद रखना, अपना बहुत सा ख्याल रखना। अच्छा, अल्लाह हाफिज़।